السلام علیکم دوستو، میں ہوں راؤ قمر رضوان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ وہ ہمارے پڑوس میں رہتی تھی۔ نام تو اس کا شاہانہ تھا، مگر پیار سے گھر والے اس سے شینی پکارتے تھے۔ اس کا کوئی بھائی نہیں تھا نہ بہن۔ جب تک باپ حیات رہا اس نے بیٹی کو آرام، پیار اور سکون کی زندگی دی، اس کی ہر خواہش پوری کی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ مغرور اور خودسر ہو گئی تھی۔ جب باپ کا سایہ سر سے اٹھا تب شینی سیانی ہو چکی تھی۔ وہ اب کسی کو خاطر میں نہ لاتی، ہر بات میں منمانی کرتی۔ اس کو قابو میں رکھنا گھر والوں کے لیے مشکل ہو گیا۔ وہ اب 17 برس کی ہو چکی تھی۔ اس پر روپ آنے لگا، وہ روز بروز نکھرتی جاتی تھی۔ اس کے ساتھ ہی غمزدہ اداس بھی ہو رہی تھی۔ انہی دنوں کھیت سے ساگ توڑتے ہوئے اس کی ملاقات میرو سے ہو گئی۔ دونوں کے دلوں نے ایک دوسرے کے سگنلز وصول کیے اور چاہت کے سگنلز کے ذریعے آنے جانے لگے۔ ان کے بیچ ملاقاتیں ہونے لگیں اور پھر گہرے مراسم پیدا ہو گئے۔ انہوں نے بہت احتیاط کی کہ ان کا راز دنیا والوں پر آشکار نہ ہو سکے، لیکن یہ محال تھا کہ ایسے تعلقات چھپتے نہیں۔ ان کے بیچ کی بات نکل گئی۔ اڑتی اڑتی شینی کی ماں زبیدہ کے کانوں تک پہنچی۔ وہ سناٹے میں رہ گئی، بھاگ کر اپنے بھائی کے پاس پہنچی اور دل پر ہاتھ رکھ کر دکھڑا بیان کیا۔ اس کے بھائی نے مشورہ دیا کہ شینی کی شادی کر دینی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پانی پلوں سے گزر جائے اور پھر اس غفلت کی تلافی ممکن نہ رہے۔ زبیدہ کے بھائی نے یہ بھی پیشکش کی کہ وہ بیٹی کو بہو بنانا چاہتا ہے، اس طرح لڑکی گھر میں رہے گی اور مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ شینی کی ماں نے مگر انکار کر دیا اور کہا، بھائی، مرحوم شوہر کی وصیت سے مجبور ہوں۔ مرتے دم اس نے وعدہ لیا تھا کہ شینی کی شادی اس کے بھائی کے لڑکے جبار سے کروں گی۔ جب اس نے یہ وعدہ لیا تھا اپنے بھائی کو بطور گواہ بیٹھا لیا تھا۔ اب میں قول سے منکر نہیں ہو سکتی، ورنہ یہ بات تنازع کی صورت میں برادری میں لے جائے گا۔ اب تم سے یہ التجا ہے کہ سرپرست بن کر میری بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھ کر عزت سے اس کی رخصتی کر دو۔ انور نے زبیدہ کو تسلی دی کہ فکر نہ کرے، جیسا وہ چاہے گی ویسا ہی ہوگا۔ ماموں نے اس کے بیاہ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ جب شینی کو علم ہوا کہ اس کو دلہن بنانے کے سامان ہو رہے ہیں، وہ سخت مضطرب ہو گئی۔ ماموں سے ڈرتی تھی، ماں سے احتجاج بیکار تھا، لہٰذا اس نے اپنے محبوب امیر بخش عرف میرو سے کہا کہ اب دوسرا کوئی راستہ نہیں، ماں اور ماموں مانیں گے نہیں، اس لیے چلو بھاگ چلے۔ لیکن اس کا محبوب میرو شریف تھا یا بزدل؟ اس نے شاہانہ کی تجویز کی حوصلہ افزائی نہ کی اور اس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ یہ قدم اٹھانے سے باز رہے۔ کہا، ہمیں شریفانہ طریقے سے ایک دوسرے کا ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تم خوابوں کی دنیا میں مت رہو۔ یاد رکھو کہ سیدھے طریقے سے تو تم مجھے کبھی بھی حاصل نہیں کر سکو گے۔ ماموں نہ صرف انکار کر دیں گے بلکہ تم لوگوں کی بے عزتی کرنے سے بھی باز نہ رہیں گے۔ شینی نے ٹھیک کہا تھا۔ میرو کا رشتہ حقارت سے ٹکرا دیا گیا اور برا بھلا بھی کہا گیا۔ وہ شینی سے محبت کرتا تھا، تبھی خاموشی سے ذلت سہ کر ان کے گھر سے نکل گیا۔ اس ناکامی پر ایک بار پھر شینی نے اس کو بھاگنے پر اکسایا۔ منصوبہ بنانے کے باوجود عین وقت پر وہ اس منصوبے پر عمل نہ کر سکا۔ یوں روتی دھوتی شینی دلہن بنی چچا زاد کے گھر آ گئی۔ رخصتی کے وقت گھونگھٹ میں بھی اس نے ماں سے یہی کہا تھا کہ اب مجھے دعائیں دے کر وداع کی ضرورت نہیں۔ اگر میں میرو کی نہ بنی تو میرا نام شاہانہ نہیں، تم مجھے چمارن کہنا۔ تم نے اپنی ضد کو پورا کیا، اب دیکھ لینا تمہاری شاہانہ کیا کرے گی۔ تب تم مجھ سے گلہ بھی مت کرنا، کیونکہ تم نے تو اپنی سی پوری کر لی ہے۔ اماں خاموش اس کی سن رہی تھیں۔ سوچا، لڑکی نادان ہے، شوہر کا پیار مل جائے گا تو ماضی بھلا دے گی، ابھی غصہ ہے، اول فول بک رہی ہے۔ کہتے ہیں جہاں دل نہ ملیں وہاں مصلحتیں گرد ہو جاتی ہیں۔ شادی جسموں کا نہیں، روحوں کا ملاپ ہے، تبھی دلی خوشیاں نصیب ہوتی ہیں۔ شینی کی روح جبار سے نہ مل سکی، وہ اپنے ہی گھر میں اجنبی ہو رہی تھی۔ شوہر بھلا مانس تھا، مگر اس بیچارے کو اپنی دلہن کے دل میں اٹھنے والے طوفان کا علم نہ تھا۔ وہ اس کو اپنی شریک حیات قبول کر چکا تھا اور چاؤ سے بیاہ کر لایا تھا۔ وہ تو ایک نارمل آدمی کی طرح صبح کام پر جاتا، رات کو تھکا ہارا گھر آتا، کبھی بیوی سے پیار و محبت جتلاتا
और कभी थकन से चूर यूं ही पड़कर सोता, मगर शीनी के जिस्म जाँ में ज्वाला दहक रहा था और रफ्ता रफ्ता आतिश फिशां के रूप में ढलने लगा। जिस कदर वो खुद पर जबर करती, इस कदर मीरू याद आता और उसकी दिली तकलीफ बढ़ जाती। वो ऐसी औरतों में से ना थी जो कुर्बानी देना जानती हैं, बस गुस्सा अंदर ही अंदर दो चंद होता जाता था। हर लम्हा अपने महबूब की याद उसको बेचैन रखती थी। जल्द ही वो उस ज़हनी अजाब से नीम जान हो गई। उसकी ज़िंदगी अब उसके लिए जहन्नुम बन चुकी थी। इस पर सितम ये कि शादी के सम्राट भी मिलने लगे और वो 3 बरसों में 2 बच्चों की माँ बन गई। अब उसकी ज़ात की तकसीम शुरू हो चुकी थी। उधर बच्चे और घर बार, उधर महबूब की याद और उसकी चाहत। उसने किसी तरह मीरू को संदेशे भिजवाने शुरू कर दिए कि मुझसे मिलो, मैं तुम्हारे लिए बहुत उदास हूँ। मीरू अगरचे शरीफुन नफ्स था, मगर था तो इंसान। कुछ अरसा उसने शीनी से दूरी बनाए रखी, फिर दिल से मजबूर हो गया। हालांकि वो चाहता ना था कि शाहाना की जिंदगी में लौट कर जाए, जबकि वो अब ब्याहता था और ये बात उसके नज़दीक मायूब थी। अगर शीनी को खुद पर जरा भी काबू ना रहा। वो लगातार उसे किसी न किसी तौर संदेशे भिजवाती रही। उसके पैगामात न थे, वो खुदा के वास्ते देती थी कि बस एक बार मिलो। मीरू कब तक दिल पर जबर करता, जबकि महबूब दिल नवाज रो रो कर बुलाती हो। वो पत्थर दिल ना रह सका। दोनों की मुलाकातें शुरू हो गईं। मोहब्बत का खतरनाक खेल फिर से जारी हुआ कि जुदाई ने जलती पर तेल का काम किया था। फिर तो ये आग ऐसी भड़की कि आंखों के आगे दबीज पर्दे पड़ गए और सुध बुध ही जाती रही। आधी रात गुजर जाती तो जब्बार गहरी नींद सो जाता। शीनी जान खतरे में डालकर मीरू से मिलने निकल खड़ी होती। एक रात जब वो खेतों की तरफ मीरू से मिलने निकली तो कुत्तों ने उसे आ लिया और भौंक भौंक कर आसमान सर पर उठा लिया। उसकी खुशकिस्मती के मीरू करीब ही था जिसने उसे कुत्तों से बचा लिया और उन्हें डराकर भगा दिया, वरना सारी बस्ती ही उस रात जागकर उन पर हमलावर हो जाती। अब खेतों में मिलने में खतरा था। शीनी ने मीरू को मजबूर किया कि वो उसके घर आकर मिले। ये तो और भी पुरखतर राह थी, मगर बुरा हो इश्क का कैसे लुत्फ ही खतरनाक राह पर चलने में आता है। बिलाखिर महबूबा के मजबूर करने पर वो राजी हो गया। ये कहना चाहिए कि उसकी मत मारी गई कि ये दोनों जब्बार के घर के अंदर मिलने लगे। जब रात गहरी हो जाती और जब्बार दिन की मुशक्कत से थका हारा नींद की आगोश में बेखबर सो जाता तो जान को खतरे में डालकर मीरू शीनी से मिलने उसके घर आ जाता। वो उसके आने के वक्त से जरा पहले दबे कदमों डेवड़ी में जाकर कुंडी खोल देती थी। वो रात के अंधेरे में उसके पास आता और पो फटने से कबल चला जाता। ये रोज तो ना मिलते थे, महीने में 3-4 बार मीरू को जान हथेली पर रखकर शीनी की खुशी की खातिर कांटों की इस बाढ़ को फलांगना पड़ता था, क्योंकि वो घर से बाहर उससे मिलने से कासिर थी। उस रोज शाम से ही बादल घिरे हुए थे। मीरू को शीनी का संदेशा मिला कि आज मुलाकात का मौसम है। मौसम वाकई सुहाना था, आज रात तुमको आना ही होगा। ये संदेशा उसे मिला तो वो शाम से ही रात का इंतजार करने लगा। जब आर काम से घर आया वो आज बहुत थका हुआ था। सारा दिन थ्रेशर पर चढ़कर भारी काम निपटाया था। तमाम फसल से भूसा अलग करके समेट भी दिया था। आज वो बेहद थक गया था। बादल देखकर उसने कहा, शीनी रात को बारिश जरूर होगी, खाना दे ताकि मैं सो जाऊं। खाना खाकर बारिश के ख्याल से वो सेहन में सोने की बजाय उस कमरे में जाकर सो गया जहां उसकी बीवी मीरू से मिलती थी। घर में 2 ही कमरे थे। दूसरे कमरे में सास, ससुर और देवर सो रहे थे। आज वो भी सेहन की बजाय अंदर जा सोए थे कि बारिश होगी तो नींद खराब होगी। अब शीनी परेशान थी कि मीरू को संदेशा भेज चुकी थी। खुले सेहन में उसके साथ बाहर बैठना खतरे को आवाज देना था। ऊपर से बारिश हो गई तो उसके कमरे में 2 ही चारपाइयां थी। एक पर जब्बार सो रहा था और दूसरी चारपाई पर उसने अपने दोनों लड़कों को सुला दिया था। खुद उसके सोने को कोने में एक खटिया पड़ी रह गई थी। अभी बूंदाबांदी शुरू ना हुई थी। रात के आधी बीत गई थी। उसने घड़ी देखी और दबे कदमों सेहन पार करके बैरूनी दरवाजे की कुंडी खोल कर आ गई। उसके कान सेहन की जानिब लगे थे। नींद तो आंखों से कोसों दूर थी। उसने खटिया को उस चारपाई के साथ बराबर करके बिछा दिया जिस पर उसके बच्चे सो रहे थे। कमर सीधी करने को वो लेट गई।
खटका किए बगैर मीरू दबे कदमों से कमरे में आ गया। उसे देखकर शीनी की जान निकल गई। शीनी ने आहिस्ता से बाजू से पकड़कर फर्श पर बैठ जाने का इशारा किया और खुद भी उसके साथ जमीन पर बैठ गई। इतने में बारिश के गिरने की आवाज आने लगी। वो उसके कान के पास मुंह लेकर सरगोशी में बोली, मैंने तुमको बुलवा तो लिया, फिर मना ना करवा सकी। अब बाहर बरामदे में चलो, यहाँ जब्बार और बच्चे सो रहे हैं। किसी की आंख खुल गई तो। जुमला अधूरा छोड़कर वो उसको कमरे से बाहर ले आई। खुदा की करनी के हल्की बारिश चश्मे जदन में तेज हो गई और फिर मूसलाधार मींह बरसने लगा। पाए रफ्तन न जाए मांदन। अभी वो सोच ही रहे थे कि क्या करें कि खटका हुआ और सुसर के खांसने की आवाज आई। वो समझ गई कि सुसर बारिश का जायजा लेने बरामदे में आने वाला है। तुम गंदम की कुंडी के पीछे हो जाओ, ये एक नजर भैंस और गाय पर डालकर वापस चला जाएगा। इतने में लाठी टेकते सुसर बरामदे में आ गए। ये दोनों जहां बैठे थे वहां ही बैठे रह गए। सच शुक्र के बूढ़े की बीनाई कमजोर थी और दिए की रोशनी मध्यम। उसने इधर देखा जिधर ये बैठे थे, जानवरों को बाड़े के अंदर पाया तो मुड़कर अपने कमरे में चला गया। तब उनकी जान में जान आई। अगरचे मींह तेज बरस रहा था, मगर अब मीरू को मजीद खतरे की दावत देना थी। वो बरसती बारिश में चलने को हुआ, तभी बच्चे के रोने से जब्बार की आंख खुल गई। बीवी को कमरे में ना पाकर उसने लालटेन हाथ में पकड़ी और बरामदे में आया। उसके कदमों की आहट सुनकर फौरन मीरू कुंडी के पीछे छुप गया और शीनी तेज कदमों से कमरे की तरफ होली। उसने शौहर को दहलीज पर जा लिया। किधर चली गई थी? बच्चे के रोने का होश नहीं? मेरी नींद खराब कर दी उसने। मैं देखने गई थी कि मवेशी सहन में तो नहीं रह गए हैं। बारिश हो रही है कब से। वो ये कहती जल्दी से बच्चे के पास गई और उसको पहलू में लेटाकर खुद उसके पास लेट गई। बिनबिनाता शौहर भी आकर अपनी चारपाई पर लेट गया। वो अब उसके सो जाने का इंतजार करने लगी। मीरू बदस्तूर कुंडी के पीछे खड़ा था। मट्टी की कुंडी जिसमें गंदम जखीरा करते थे, उस वक्त वही उसके जान बचाने का जरिया बनी थी। बारिश जोर दिखाकर अब थम गई थी। जब्बार को नींद न आ रही थी। वो उठकर बरामदे में आया और वहां पड़ी चारपाई पर ढह गया। चारपाई ऐसी जगह बिछी हुई थी कि कुंडी के पीछे से निकलकर दरवाजे की तरफ जाने का रास्ता बंद हो गया था। अब जब्बार के सो जाने का इंतजार लाजिम था, जिससे मीरू का दम घुटने लगा, मगर जब्बार के खराटों की आवाज ने उसको सहारा दिया। वो गहरी नींद सो गया था, मगर सुसर को नींद ना आ रही थी। उसको अंदर कोठड़ी में गर्मी लगने लगी। वो चारपाई उठाकर सहन में लाया और बैरूनी दरवाजे के पास डालकर सो गया। अब मीरू ने खुद को कहा, वाह देहाती की अकल। औरत के कहने में आया और मौत के गड्ढे में आ फंसा। बूढ़ा सोने का नाम न ले रहा था और वो रह रह कर करवटें बदल रहा था। कमबख्त ने चारपाई भी ऐसी जगह डाली है कि इधर से निकलकर दरवाजे तक जाने का रास्ता भी बंद हो गया है। तभी उसके सोने का इंतजार लाजिम था। कमरे के अंदर हब्स के बायस दम घुटने लगा। शीनी का बच्चा कुसमुसाया और रोने लगा। शीनी ने घबराकर बच्चे के मुंह पर हाथ रख दिया कि कहीं उसके रोने से शौहर की आंख ना खुल जाए और वो उठ बैठे। इस तरह चुप होने की बजाय दम घुटने से बच्चे ने और जोर लगाकर रोना शुरू कर दिया। घबराकर शीनी ने कसकर उसका जबड़ा अपनी मुट्ठी में भींचा कि उसकी सांस बंद हो गई और साथ रोने की आवाज भी। बच्चा तड़प कर ठंडा हो गया। शीनी ने अपना हाथ उसके मुंह से हटा लिया और उसकी नाक के पास हाथ ले जाकर सांस देखने लगी। अभी उसके हवास ठिकाने न आए थे कि दूसरे बच्चे ने पहलू बदला और रोना शुरू कर दिया। उसकी आवाज को खामोश करने के लिए उस औरत ने फिर से वही अमल दोहराया। चंद सेकंड में ही दूसरा बच्चा भी खामोश हो गया। जब्बार और सुसर दोनों सो गए तो शीनी आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाती कुंडी के पीछे आई और मीरू को बाजू से खींचकर कमरे में ले आई। बोली, अब तो किसी तरह बाहर निकल जा। बच्चे फिर से जाग गए तो बाहर नहीं जा सकोगी। लेकिन तुमने इनको खामोश कैसे किया? मुंह को हाथ से बंद कर दिया था। उसे शक हुआ। कहा, देखो तो कहीं सांस तो हमेशा के लिए बंद नहीं हो गई। हाँ, हो तो गई है। अरे कहीं मर तो नहीं गए? माँ ने बारी बारी दोनों की नाक पर हाथ रखकर सांस जांची। हाँ, मर गए हैं। अब तू निकल, अपनी जान बचा। वो खांस रहा है, वो अभी नहीं सोया। खटक की आवाज से उधर को निकलकर पिछली दीवार से बाहर कूद जा। औरत का हौसला देखकर मीरू का सर घूम गया। उसे लगा कि उसके पास दिए की मध्यम रोशनी में
उन मासूम बच्चों की माँ नहीं, कोई डायन खड़ी है। बेख्तियार उसके मुंह से निकला, उफ उफ, तू औरत है कि डायन? ये कहकर वो कमरे के अकबी खिड़की से निकल भागा, पिछली जानिब की दीवार पर चढ़ा और धम से बाहर कूद गया। आवाज पर सुसर ने पुकारा, ये कैसी आवाज थी? अरे कौन कौन करता। वो उठ बैठा, भागने वाला भाग गया और वो कौन कौन करता रहा। लेकिन गांव के लोगों का कहना है कि मीरू इस औरत की सफाकी से डर कर ऐसा गया कि पलट कर गांव भी नहीं आया। वो हमराज दोस्तों से कहता था, यारो समझ में नहीं आता कोई औरत ऐसी संगदिल भी हो सकती है कि इश्क के पीछे बच्चों को ही मार डाले। मैं ऐसी औरत की मोहब्बत से बाज आया, दूसरी बार मिलने का अब तसव्वुर भी नहीं कर सकता। जबकि शीनी के संदेशे इस अंदोहनाक वाक़े के बाद भी मिला करते थे कि एक बार मिलो ना। इस वाक़े के बाद गांव में शीनी की कहानी जुबान ज़द-ए-आम हो गई। किसी ने बराह रास्त उसे इल्ज़ाम नहीं दिया, मगर शीनी पर शक बढ़ता चला गया। मीरू के यूं गायब होने से सबको हैरत हुई, मगर कोई इसकी तफसील से वाकिफ नहीं था। जब्बार ने जब देखा कि उसकी बीवी के बच्चे रातों रात फौत हो गए हैं तो वो गम से निढाल हो गया। वो किसी को कसूरवार नहीं ठहरा सकता था, क्योंकि बाज़ाहिर बच्चे नींद में ही दम तोड़ गए थे, लेकिन अंदरूनी तौर पर शीनी पर एक अनजाना सा खौफ तारी हो चुका था। शीनी ने मीरू के वापस ना आने की वजह को समझने में ज़्यादा वक्त नहीं लगाया। वो जान चुकी थी कि उसकी संगदिली और बच्चों के हादसे ने मीरू को खौफजदा कर दिया है। उसका इश्क जो एक वक्त में बेहद गहरा था, अब खुद उसके लिए अजाब बन चुका था। गांव वालों की सरगोशियों ने उसे मजीद तन्हा कर दिया। माँ भी उससे दूर हो चुकी थी, क्योंकि वो जान चुकी थी कि शीनी के दिल में अपनी अज़दवाजी जिंदगी और बच्चों के लिए कोई हकीकी एहसास नहीं है। शीनी को मीरू के जाने का गम, बच्चों की मौत का बोझ और लोगों की चुभती नजरें हर लम्हा एहसास दिलाती रहीं कि वो कहाँ गलत हो गई थी। उसके दिल में एहसास जुर्म की आग भड़कने लगी। एक रोज़ उसने अपने शौहर जब्बार के सामने हकीकत का इकरार करने की ठानी। उसने सोचा कि शायद जब्बार का उसे माफ़ करना उसके दिल को कुछ सुकून देगा, मगर जब्बार का रद्द अमल बिल्कुल उसके ख्याल के बरक्स निकला। जब्बार ने उसे सुनकर गुस्से में कहा, शीनी, तुमने मेरा एतमाद और मेरे बच्चों की ज़िंदगी दोनों को बर्बाद किया। जब्बार ने शीनी को तलाक दे दी और ये खबर पूरी बस्ती में फैल गई। अपनी बदनामी और जिल्लत के साथ शीनी ने गांव छोड़ने का फैसला किया। वो एक दूसरे गांव में जाकर रहने लगी। वहां उसने अपनी ज़िंदगी को एक नई राह देने की कोशिश की। उसने मज़हब और रूहानियत की तरफ रुजू किया। अल्लाह के सामने अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना शुरू कर दी। कुछ साल बाद शीनी ने वापस अपने गांव जाने का इरादा किया। उसके दिल में ख्याल आया कि शायद गांव वाले उसे अब भूल चुके हों और वो दोबारा अपनी ज़मीन और खेतों का काम संभाल सकेगी। लेकिन गांव वालों ने उसे देखकर पुरानी कहानियों को फिर से दोहरा दिया। लोगों की नज़रों और सरगोशियों ने उसके दिल पर ज़ख्म दिए। शीनी को एहसास हुआ कि इंसान अपनी कहानियों को पीछे छोड़ने में नाकाम रहता है। उसने अपनी ज़िंदगी को लोगों की नज़रों से बचकर गुजारने का फ़ैसला किया और अपने वालदैन की ज़मीन पर खेती बाड़ी में मसरूफ़ हो गई। शीनी के लिए एक दिन हैरत का बाइस बना जब उसने मीरू को गांव की तरफ वापस आते देखा। सालों बाद मीरू ने अपनी ज़िंदगी को कुछ सुकून दिया और शहर में एक काम पर लगा, मगर उसकी यादें उसे वापस खींच लाईं। शीनी ने मीरू को देखा तो दिल को काबू में रखने की कोशिश की, मगर मीरू के सामने जाकर अपना कसूर कबूल करने का फैसला किया। मीरू, मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा जुल्म किया। मैंने अपनी मोहब्बत को गम और तबाही में बदल दिया। मुझे माफ़ कर दो। मीरू ने उसे बगौर देखा और कहा, शीनी, मोहब्बत के रिश्ते को तुमने अपने गुनाहों से दागदार किया है। मैं तुम्हें माफ़ तो कर सकता हूँ, मगर दोबारा इस मोहब्बत को दिल में जगह नहीं दे सकता। शीनी ने मीरू की बातों को समझा और अपनी ज़िंदगी को तन्हाई में गुजारने का इरादा कर लिया। उसने अपनी ज़िंदगी को अल्लाह की राह में गुजारने की कोशिश की। इसकी कहानी एक सबक बन गई कि इश्क और जुनून का मिलाप बाज़ औक़ात इंसान की ज़िंदगी को बर्बाद कर देता है। नाज़रीन, इस बारे में आप क्या कहते हैं? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।
इस कहानी से आपने क्या सबक सीखा कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।